Good morning, everyone, and welcome to the Uthan session. Today, we are starting with a new and interesting series, which is connecting soul to soul. We have Sangeeta Didi with us today to take up this session. Sangeeta Didi, over to you. Om Shanti. Om Shanti. Hope all are fine. So good to see you. So since we are starting with a new series, so let's just have a 1 minute silence and let's take a vow in this silence that whatever will listen, it is for my good, it is for my benefit, and I take a vow to completely take full advantage of it and implement it in my daily life. Shanti. Shanti, good morning to all angels. So let's start a new culture this time. Something new. This is called a new month. And look, luckily today is the first, and the first of the month is Tuesday. So to start the newness from the first of this month. Okay. And the newness would be to on the videos. At least in the starting of the session, let all of us just big good morning by switching on the videos. दृष्टि लो, खाली दृष्टि दो और दृष्टि लो. आईज से बहुत एनर्जी पास होती है. ऑल दोज हु बिलीव, आईज सभी एक पावरफुल. हम आपको देखे, सोल is seeing the soul and you see us. I see each one of the soul, because this is a soul chapter we are doing today, this month, which is a very deep and important chapter of life. तो सभी देख रहे हैं, सोल की भाषा सोल समझते हैं. हिम्मत करो. वीडियो ऑफ करके भी सुनते तो है ना. यू ऑल आर ऑनेस्ट, ऑल आर डेडिकेटेड, सिंसियर. तो वीडियो ऑफ करके तो सुनते, वीडियो ऑन करके सुन. एंड सोल स्टेइंग हियर, and we are going to create a relationship of soul to soul. So that is what is the topic of this month. तो सबको ओम शांति. नए creating a connection. See, we all are connected. We all are in a gathering. मतलब क्या? It could be a 4 of gathering in the house. It could be 6 of them in the house. It could be in the building we are staying. So there are maybe hundreds. And then when we come to the office, there could be gathering. तो हमारा सबका एक संगठन है. तो किसका संगठन है? इतने सारे सोल्स का सोल के साथ कनेक्शन. बॉडी के साथ कनेक्शन है या सोल के साथ कनेक्शन. दिस द होल मंथ विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली सी द इम्प्रूवमेंट, what improvement we need. तो if we just see ourselves, आज हमारा ज्यादातर today the most important in life is relationship, ना, संबंध. But today relationship has become an effort or is a matter of comfort. What do you say? Is an effort or a matter of comfort?
मेहनत लगती है या एक सुकून मिलता है हर संबंध में, चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, चाहे टीम लीडर सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप हो, चाहे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, चाहे चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप हो, अब ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो। नाउ इज इट एन एफर्ट, हम बहुत मेहनत करते हैं इसको बचा के रखने के लिए, इसको सुखी रखने के लिए, या एक नेचुरल कंफर्ट है वो रिलेशनशिप? हाउ मेनी ऑफ यू से ए, इट्स एन एफर्ट, बी कंफर्ट? हाउ मेनी ऑफ यू से ए? अच्छा, वंडरफुल, ओके, ओके, वंडरफुल. So, unanimous answer. It has become an effort. Sambandh, it's has become an issue of concern, is become a cause of stress, is become full of challenges. तो सबसे, आज अगर किसी को पूछो उनके इश्यू ऑफ कंसर्न क्या है, रिलेशनशिप. कॉज ऑफ स्ट्रेस क्या है, रिलेशनशिप. चैलेंजेस क्या है, रिलेशनशिप. मतलब जो सुख देने के लिए हम मिलते हैं, एक परिवार बनता है. नाउ इट हैज बिकम, एस यू ऑल ऑफ यू हैव सेड, एफर्ट. नाउ द रूट कॉज ऑफ दिस एफर्ट, हम सोच हम सोचते कि ये तो ऐसे ही चलता है. हमने अपने पेरेंट्स में भी ऑलवेज ऐसे ही देखा. घर में होता ऑलवेज ही इस तरह होता था, ऑलवेज ही गुस्सा गुस्सा होता था, कुछ ना कुछ बातों में लड़ाइयाँ चलती ही रहती थी. सो वी हैड सीन देयर आल्सो एंड वी आर सीन हियर आल्सो. तो हम यही देखते रहे, एंड देयरफॉर वी टुडे इट्स वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस कि इट्स अ मैटर ऑफ स्ट्रेस संबंधों में, और आज तनाव का कारण भी रिलेशनशिप. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ रिलेशनशिप, सो आई विल बी, बिकॉज संबंध we felt is body to body. Exchange of words is called relationship. आप कैसे बात करते हो, हम कैसे बात करते हो, आप मेरे लिए क्या करते हो, what I do for you, what you do for me, that is what we think about. कि इसने मेरे लिए इतना किया, मुझे भी उसके लिए इतना करना है. इसने मेरे से बहुत अच्छे से बात की, मुझे भी बहुत अच्छे से बात करनी है. सो संबंध हम सोचते हैं बोलने से बनता है, कुछ करने से बनता है, एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, इसको रिलेशनशिप कहेंगे. नाउ एक सिंपल क्वेश्चनर है, ऑल ऑफ अस विल बी वेरी फास्ट इन अटेम्प्टिंग इट. लेट्स फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चनर. तो इसमें आपको ये समझना है, ए और बी ऑप्शन दिया रहेगा और अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना है. सभी फास्ट रहेंगे तो फास्ट जवाब आएगा. Am I satisfied with my relationships today? Now, will go by each relationship, parent and a child. So I'm a parent here and my children. Always, sometime. ये child parent थोड़ा wrong है. Always, sometime. We just have to answer A, B. So we just want to know, we have to understand, am I satisfied with what all, with the children I have today? मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूं, आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड अंटिल नाउ, और समटाइम्स नॉट मच. ऐसे ए बी. सो यू आर अ पेरेंट एंड द चाइल्ड. ओके, सो ऑलवेज, ओके, बी समटाइम्स. ओके, so go on giving the answer. We want at least as many 72, मतलब 72 आंसर्स है, फटाफट करते जाएंगे.
because according, and you also note down in your mind, or better what you write, you have written A or B. Okay, yes नहीं चाहिए, A चाहिए या B चाहिए. So I as a parent and the children, so I'm satisfied with what all qualities, what all talents my child possesses. Okay, wonderful. Second है, next question. Now vice versa. As I as a child and parent, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन है, ऑलवेज, समटाइम. कभी कभी हम कुछ बातों में ना जल्दी तंग आ जाते. क्या है, तुम रोज रोज एक ही बात बोलते रहते, रोज रोज फोन, इतना ज्यादा फोन करते हो, मैं बिजी हूं ना. सो आई एम अ चाइल्ड, पेरेंट्स आर ऑब्वियसली वेरी कंसर्न्ड. तो मुझे ये बात ना उनकी बिल्कुल नहीं जचती. सो एम आई सेटिस्फाइड विथ माई रिलेशनशिप टुडे? ऑलवेज, समटाइम. Okay, always. Okay, wonderful. ए आंसर है, बहुत अच्छा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड. सिबलिंग टू सिबलिंग, जिनके भी सिबलिंग है, भाई बहन है, तो भाई बहनों का आपस का संबंध में ऑलवेज, समटाइम. अगेन द सेम थिंग. हाउ डू आई फील? हमारे आपस के ना बहुत अच्छे संबंध है हमेशा. तो ऑलवेज का मतलब हुआ कि कोई मनमुटाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं. ये नहीं थोड़ा बहुत तो झगड़ा होता रहे, वो थोड़ा बहुत फिर वो सम टाइम में आएगा. थोड़ा बहुत तो बोलाचाली होती रहती है, थोड़ा बहुत तो मन मुटाव चलता रहता है. नो, नथिंग इज थोड़ा बहुत. ऑलवेज मतलब ऑलवेज, सम टाइम मतलब सम टाइम. हमारी आपस में एकता ऑलवेज है, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज है, एडजस्टिंग ऑलवेज है, ऑलवेज, सिबलिंग टू सिबलिंग. तो जो भी आप ऑलवेज लिख रहे हैं उसमें ऑलवेज मतलब नॉट ए सिंगल नेगेटिविटी, ये हमको ध्यान रखना. दैट इज वी से ऑलवेज. तो कैसा है? अच्छा, ए है, बी, बी भी है. सभी करे, ट्राई कर, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फाइनल ग्राफ वी आर गोइंग टू मेक अप. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है. नाउ द थर्ड रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ. एम आई फुली सेटिस्फाइड, लिटिल और लिटिल? लिटिल फिर थोड़ा भी आ जाएगा, फुल्ली सेटिस्फाइड मीन्स आई हैव 100% एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्टनर. उसका जो स्वभाव है, संस्कार है, आई एक्सेप्ट द होल पैकेज. जब हम एक टीवी लेते हैं ना, तो उसके रिस्क फैक्टर्स भी साथ में लेते हैं, इसलिए उसमें वारंटी कार्ड आती है, क्योंकि वो मनुष्य, वो प्रोडक्ट है कि इतने साल तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिस्क है. तो ये संबंध में एम आई फुली सेटिस्फाइड, लिटिल और कम ज्यादा, थोड़ा बहुत भी कम? अच्छा, टू, वन, वन. अच्छा, टू ज्यादा है. नहीं, हैव टू वाला ऑलवेज में नहीं आएगा प्लीज. ऑलवेज में ऑल हैव टू नहीं है, तो मजबूरी है. तो वी हैव टू नहीं है, वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ व्हाट वी आर स्पीकिंग. हाँ, मजबूरी वाला रिलेशनशिप नहीं, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कम नाउ. ओके, सभी प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे, सब एंजल्स हैं और इशारा से समझने वाले हैं. फटाफट लिखो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Employer and or team leader, whatever you are, so you are in a higher position and the subordinate with you. So with all I'm fully satisfied, with majority I'm fully satisfied, and with very few I'm fully satisfied. With all, with majority, very few. A, B,
सी, इसमें 3 आंसर. सो आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड. I, as a team leader, as a senior position and subordinates around. Yeah. सब ट्राई करें. सी, सी है, बी मेजोरिटी है. ओके, मेजोरिटी से आप सेटिस्फाइड हो. ओके, ए, सी बहुत कम है. वंडरफुल, वेरी गुड गैदरिंग देन. ओके, द नेक्स्ट इज वाइसा वर्सा. सोच के चलो. You are the subordinate and you have someone above you. Am I satisfied with all my team leaders, the seniors around me? It could be, so all the seniors, majority of them, very few. ये हमें सोचना है. मेरे जो सीनियर्स है उसकी बात है अब ये. तो अपने आप को देखें, हम अपने ग्राफ को देख रहे हैं, क्या हमारे में हम कर रहे हैं. सभी आंसर कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करेंगे. मेजॉरिटी, ओके, बी आंसर ज्यादा आया है, मेजॉरिटी. वंडरफुल, वेरी गुड. सो एज अ टीम लीडर, एज अ सबऑर्डिनेट, आप जूनियर हो एंड यू आर स्टिल सेटिस्फाइड विथ मोस्ट ऑफ योर एम्प्लॉयज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कलीग आपस की अंडरस्टैंडिंग विथ ऑल द कलीग्स अराउंड. और मेरे कुछ फेवरेट्स है, इनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, इनके साथ है ना मेरा बिल्कुल नहीं चलता, मुझे उनको देखते भी अच्छा नहीं लगता. विथ ऑल, विथ मेजोरिटी. एम आई सेटिस्फाइड विथ एज अ कलीग टू कलीग रिलेशनशिप विथ ऑल, मेजोरिटी और वेरी फ्यू. कुछ बहुत कम है जिनके साथ में कंप्लीटली मुझे अच्छा लगता है, बाकी मेजोरिटी है मेरे जिनके साथ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं. तो am I satisfied with all of the colleagues around me? With majority of them, very few. B, अच्छा, majority of them you are a very good satisfied. Wonderful, ये तो बहुत अच्छा है. Result is good. And the next question is, am I satisfied that when every time I get into conversation and then come out, like कभी कभी हम बातचीत करते हैं और फिर बोल देते हैं कुछ बात, और या हम बोल नहीं पाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि, और अब जो नहीं बोल पाते वो मन में चलता रहता है, ऐसा है. तो जब भी मैं कॉन्वर्सेशन से निकलूं तो देयर इज समथिंग गोइंग इन माय माइंड ऑलवेज. तो देयरफॉर मतलब जब सेटिस्फाइड होते हैं ना तो बाद में बुद्धि नहीं चलती. जब डिससेटिस्फाइड होते तभी, अरे ये बोल देना चाहिए था, बोला नहीं मैंने. सो whenever I get into conversation, am I fully satisfied? जनरली क्या होता है, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, हम बात तो कर लेते हैं, अगला शायद बात नहीं करे या जवाब, अब आप, हम ज्यादा बोल नहीं पाते हैं या टू मच बोल देते हैं, फिर वो मन में चलता रहता है. सो इफ आई एम सेटिस्फाइड मेरे मन में नहीं चलेगा, इफ आई एम डिससेटिस्फाइड मेरे मन में चलता रहता है. इंसिडेंट हो गया, बातचीत खत्म हो गई, पर मन चलता रहता है. So is this kind of relationship always? Sometime कुछ ना कुछ चलता रहता अंदर. तो ये दोनों बातें हैं, या टू मच बोल दिया तो भी लगता है रे, या फिर हम उसको ये जाने के बाद, या क्या है, हम जैसे हम कहते ओ वेलकम, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते, और अंदर में फील होता क्या है, चले जाए जल्दी जाए, अच्छा है. सो दिस वी हैव टू चेक. So it means that time I'm not satisfied. So when they go away, that conversation is going on.
इनको टाइम, बस इनको खाली बैठे रहते, आ जाते, हमारा भी टाइम वेस्ट कर दिया। तो कॉन्वर्सेशन के बाद ये माइंड स्क्रीन पे चलने वाली चीज, और बहुत बार चलता है, मे बी ऑलवेज एंड समटाइम। अच्छा, बी है, वंडरफुल, सब में बी है, अच्छा रिजल्ट है ये तो। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, when I go for the work, the feeling is I want to go for the work, I have to go for the work, क्या है? जाना पड़ेगा, या दिल से इच्छा होती है जाना है? ए बी, ये आई हैव टू गो बी आएगा, तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन रखना है। एक कंफर्ट फीलिंग है फॉर गोइंग टू द वर्क, और एक है क्या करें, कमाना है, जाना पड़ेगा, तो ये फीलिंग है। फास्ट लिखे, ए, आई वॉन्ट टू गो फॉर द वर्क। ओके, मिक्स्ड रिएक्शन, ओके ओके। And the next question. Similarly, now, when you are heading back towards home, I want to go home, for home नहीं, I have to go home. कभी कभी मतलब ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्या करे, घर जाना पड़ेगा. So we can understand the scenario in the house there. What is waiting for you? जाना पड़ेगा. जब सुबह नाश्ता किया था ना, तो बहुत ऊपर नीचे हुआ था. फिर घर तो आ गए, ऑफिस तो आ गए, तब तक तो सब ठीक था. वापस अब माइंड वापस जाना पड़ेगा, फिर वो सूजा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा. तो ऐसा होता है, या आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गो होम. अच्छा देखो, इसमें भी मिक्स्ड है, आई वॉन्ट टू गो में भी मिक्स्ड है. वंडरफुल. और नेक्स्ट है लास्ट. अगेन व्हेन यू आर हेडिंग टूवर्ड्स ऑफिस, ये आई थिंक आई वॉन्ट टू गो टू ऑफिस, आई हैव, सॉरी ये तो हो गया. Do I operate my life in this manner? What I do for them and what they do for me, what I say to them and what they say to me. I've done so much for them, what they have done for me. क्या मेरी लाइफ की ऑपरेशन, मैं कितना, वो मेरे लिए, मैं कितना करती हूँ, वो कितना करते मेरे लिए. उसने मुझे 500 का शगन दिया, मुझे भी उतना ही देना है. वो मुझे ऐसे बोलता है, मैं भी वैसे ही बोलती हूँ. और मैंने इतना किया, उन्होंने मेरे लिए क्या किया. Do I operate the life in this manner? Yes, never, mostly. समझ में आया? टू. अच्छा, 2, 3, बी. ओके, नेवर, नेवर वाले भी है, 3 वाले भी है. आई नेवर ऑपरेट इन दिस लाइफ. ओके, सी. So all have written their answers. Never. हमारा संबंध किस बेसिस पे है, अब ये डिसाइड कर रहा है. क्योंकि रिलेशनशिप मतलब एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है, एक्सचेंज ऑफ एक्शंस है, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स है, एक्सचेंज ऑफ फेवर्स है. ठीक है, बट what I think of them and what they think of me, is this very important? अब इन सब में आपने देखी कि हमारी फीलिंग्स कैसी है, कि it's not, the relationship is not become a, it's become a effort. Why? क्योंकि मेजोरिटी के आंसर 2 या 3 ये आंसर्स थे. ए वाला कम था. ऑलवेज सेटिस्फाइड, ऑलवेज कंफर्टेबल. दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप.
तो वाई, बिकॉज हमारा जो रिलेशनशिप है इट्स बेस्ड ऑन वो कैसे करता है, इतना मैं करूं, मैंने इतना किया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। दिस इज मेरे संबंध है। अब जहां मेरी कैलकुलेशन होती, हमारी मेजरमेंट होती है, इतना मैंने किया, या हमेशा क्या मैं ही करती रहूं। तो जहां कैलकुलेशन होता है ना, वहां मेहनत होता है। जहां नेचुरल होता है वहां मेहनत नहीं होता है। So therefore today it's just like, suppose the husband says कि चलो अभी आज इस रिलेटिव के पास जाना है। हस्बैंड के साइड के रिलेटिव्स है। अब वो खुश तो है नहीं। अब वो बोला ठीक है, अभी क्या करे, अगर नहीं बोले तो आफत, कुछ एक दो वर्ड बोलेंगे ऐसे। बोला चलो हाँ बोल देते हैं। हाँ बोल तो दिया, चली तो गई, पर अंदर चलता है ऑलवेज, मुझे ही झुकना पड़ता है। इनको थोड़ कभी भी जब भी इनको जहां जाना है मतलब जाना है, कभी ये सोचते भी नहीं कि मुझे भी कुछ इच्छा है। अंदर ही कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ऊपर क्या चलता है, ओके चलते हैं, रिलेटिव्स के पास जाएंगे, स्माइल भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, खाना भी खा लेंगे। अंदर क्या चल रहा है, ये ऐसे है, ये है, वो है। तो नाउ क्या हो रहा है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है ऊपर की, अंदर डिब्बी में क्या है, ये वाला चीज चल रही है डिब्बी में। एंड देन ये एवरीडे ऐसा हो रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है, ऊपर मेरा बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। तो क्या हो रहा है, देयरफॉर, बिकॉज फीलिंग्स कुछ और है, वर्ड्स कुछ और है, देयरफॉर वॉट एवर आई डू, इट्स अटेंशन। फीलिंग्स कुछ है नहीं, कंफर्टेबल है नहीं, वर्ड्स में ऑलवेज स्वीटनेस चाहिए। एंड देन वी से, मैंने पूरा जीवन किया ही किया, मुझे मिला क्या, मैं ऑलवेज करती रही, मैंने सबको एडजस्ट किया, सबके लिए किया, इनके सबके लिए किया, वो मेरा कितना करते हैं। वाई देर इज अ कैलकुलेशन, वाई देर इज अ फीलिंग टू गेट, बिकॉज वाइल आई वॉज गिविंग फिजिकली इट वॉज यस, तो इसलिए कुछ समय तक चल गया, फिजिकली यस था, अंदर कुछ और चल रहा था। इस कारण ये जो इक्वेशन था ना, तो थोड़े समय तक रिलेशनशिप चलता रहा, चलता रहा, क्योंकि एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। लेकिन जहां दोनों ही नेगेटिव हो जाते थे, वो थोड़े समय के बाद नहीं चलता था। तो हमने सोचा कि या तो जो है ना सीधा सटक बोलो, या फिर ऐसे ड्रैग करते रहो, देयरफॉर इट इज अ ड्रैगिंग ऑफ रिलेशनशिप। एंड देन वी से, फायदा क्या हुआ, मुझे क्या मिला, इतना करके भी आज ये हालत है ना मेरी, आज तो कुछ मुझे ये मिला नहीं ना। Was the relationship is meant for giving or getting? Because I couldn't be happy inside, I couldn't be peaceful that time, I couldn't be satisfied. तो मेरा विदाउट सेटिस्फेक्शन, आई वॉज डूइंग यस, यस, ओके, फाइन, श्योर। तो ये सेटिस्फेक्शन था नहीं और ऊपर से चल रहा था। तो इट्स लाइक जाना है और वो इधर खींचना है, ड्रैगिंग था। नाउ why, whenever we say yes and then हम say कि I have done so much in this relationship but still it didn't work, why so much, क्योंकि जब बिना मन के हम करते हैं ना तो बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि दोनों पहिए नहीं चल रहे, एक पहिया चल रहा है, एक पहिया पीछे है, तो एफर्ट तो लगेगा ना। जब मन भी चलता है, तन भी चलता है, तो फिर इजी होता है। और ऐसे करते करते हम चाहे कितने दिन भी, कितने समय तक चला सकते हैं। एंड देयरफॉर फिर एक समय ऐसा था, बस नाउ इट्स टू मच, आइदर
वो अंदर टोल लेता रहता है, विच नाउ कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ इलनेस, डिप्रेशन, कोई बीमारी। फिर कहते हैं कि बहुत समय का स्ट्रेस था ना, तब ये डिजीज है, और डिप्रेशन में चले जाएंगे, और फीलिंग कि टू मच है लाइफ में, कुछ नहीं फायदा, लाइफ इज यूजलेस, बिकॉज विल्स्ट डूइंग आई वॉज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द वर्ड्स, नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई फीलिंग्स। मैं सोच क्या रही, तो इस कारण वर्ड्स में बहुत स्वीटनेस थी, लेकिन फीलिंग्स में। नाउ आप कहेंगे कि जब मन जचता ही नहीं है, मुझे वो रिलेटिव्स का जचता ही नहीं हो, उनको उनके साथ बहुत है, मुझे उनके ये फ्रेंड के साथ जचता नहीं है, पता नहीं इनको तो बस उनके वो फ्रेंड के साथ बहुत जाना है, मेरे को नहीं अच्छा लगता, बट फिर भी मैं हाँ करती हूँ। अब मुझे हाँ क्यों करना है? टू प्लीज दैट पर्सन। तो मैं बिना खुश रहे खुश करती हूँ, इसलिए आई विल नेवर बी हैप्पी। खुश करने वाला कभी खुश नहीं होता, खुश रहने वाला खुश होता है। सो देयरफॉर द रिजल्ट विल बी अनहैप्पीनेस। खुश रह के खुश नहीं किया, नाराज रह के खुश किया, तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। इधर -1 है, +1 है, जीरो, कुछ नहीं मिला मुझे। इसलिए हम कहते हैं मुझे क्या मिला, इतना करने के बाद भी मिला क्या मुझे? क्योंकि वो -1 था, +1 हुआ, जीरो। और इनफैक्ट -1 बहुत हैवी था। अब हम चल तो रहे हैं, हाँ तो कर दिया, ये तो ऐसे ही है, वो जहां जा रहे हैं वो वैसे है, ये तो कुछ नहीं है, मतलब ये -1 बहुत हैवी स्टेटमेंट्स है, +1 एक ही बार था, ओके चलते हैं, ठीक है, ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होगा इससे, तो हाँ बोल दो। तो +1 बहुत छोटा था, -1 बहुत ज्यादा था। कभी कभी वो -1 भी नहीं होता है, -4 हो जाता है, होता है कभी कभी -4। कल 2 अक्टूबर है ना, हॉलीडे है, वापस आएगा ये स्टाइल, ये सिनेरियो आ सकता है। तो -4 होके +1 होता है ना, फाइनली वो -3 है, तो मुझे क्या मिला? और कुछ मिलता ही नहीं मुझे। फिर धीरे जाके लाइफ में एक वैक्यूम आ जाता है, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम, वॉइड, एम्प्टीनेस, खालीपन लगता है, ऐसे लगता है मेरा कोई है नहीं, सब मतलब ही है। दिस इज अ डिजेक्शन। तो इस कारण हमारा क्यों था, हमारा हम सोचे कि मैंने बोल दिया ना, चलो, आई एम सेविंग द रिलेशनशिप। Relationship was in the form of words, relationship was in the form of actions, कि चलो मैं चली गई है ना उनके साथ, चलो अब तो खुश रहेंगे वो। रिलेशनशिप वॉज इन द फॉर्म ऑफ थिंकिंग, ये हमने कभी नहीं सोचा। तो थॉट्स मेरा क्या है, मेरा उसके साथ थॉट्स क्या है, दिस इज द रिलेशनशिप। जब मैं जा रही हूं उनके फैमिली में, उनके साथ, या मैं उनकी वाइफ के फैमिली में जा रहा हूं, मैं सोच क्या रहा हूं? दैट इज द रिलेशनशिप आई शेयर विद द पर्सन, नॉट कि उसको खुश करने के लिए। ये जो इनर कॉन्वर्सेशन है ना, वो मेरा कनेक्शन है उसके साथ। जो आउटर कन्वर्सेशन है वो जीरो है, बट इनर मेरा क्या कॉन्वर्सेशन, क्वालिटी ऑफ द इनर कॉन्वर्सेशन is the kind of the quality of relationship I share with them. तो वो कैसा होगा? अब आप कहेंगे वो पॉजिटिव कैसे होगा? मुझे पता है वो इतने मतलब ये इनको पता नहीं चलता है, वो बहुत ऐसे होते हैं, और ये पता नहीं कैसे आकर्षित हो जाते हैं। वाई सो मच एक्सेप्टिंग और अट्रैक्टिव फॉर देम, वाई ही वॉन्ट्स टू गो दैट, बट आई नो, but now whilst though I know the facts, maybe I am very knowledgeable about where that person is taking me, but inner, can I still be powerful, pure, positive? क्या हो सकता है ये? जैसे आप सबने लिखा समटाइम्स, अगर समटाइम्स है मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ऑलवेज की कैटेगरी में ये सब मेरा आ जाए,
तब हो सकता है जब आई जस्ट वॉन्ट टू गिव एंड गिव इन द रिलेशनशिप। मुझे आई हैव टू गो, मुझे जाना तो पड़ेगा, इनके साथ जाना है, लेकिन उस समय ओके, इसमें भी कुछ अच्छा है, हम वहां जाएंगे। हम वो जहां जा रहे हैं हो सकता है वो बहुत नेगेटिव है मेरे हिसाब से। आई एम अ वेरी पावरफुल सोल, प्योर सोल। आई एम गोइंग एंड गिविंग, आई वॉन्ट टू गो देयर टू गिव देम, make them feel the vibrations of purity, make them feel the vibrations of peace। मैं इसलिए जा रही हूं, इनको खुश करने के लिए नहीं जा रही हूं, ताकि आर्गुमेंट्स ना हो इसके लिए नहीं जा रही हूं, मैं जा रही हूं आई हैव टू गिव। सो व्हेन आई हैव अ पर्पस एंड व्हेन द मकसद फॉर एनीथिंग इन रिलेशनशिप is very much with what I'm doing outside, then it is called a happy satisfaction in the relationship। क्योंकि मैं अंदर ही अंदर ग्रम्बल कर रही थी और फिर कर तो रही थी ऊपर से का, ये जो संबंध था वो सोल टू सोल नहीं था। वो कौन सा संबंध था? लेबल टू लेबल। बाबा इनको मना करेंगे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अब मना नहीं कर सकते। तो इट वॉज जस्ट अ लेबल। एज अ वाइफ आई हैव टू प्लीज हिम, एज अ हस्बैंड आई हैव टू प्लीज हिम, एक लेबल था, सोल के साथ संबंध नहीं था। तो एक होता है कि जो दूसरा कर रहा है, करना है, लेकिन करते समय आई हैव दैट पावरफुल वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस। ओके, चलेंगे कुछ, इसलिए हमारा बहुत अच्छा होता है कि कोई बात नहीं, वहां वाले इतने एक्सेप्टिंग नहीं है, वहां वाले इतने वेलकमिंग नहीं है। मेरा पर्पस क्या है? आई वॉन्ट टू गो दैट just to give the vibrations of peace। They are all peaceful soul। I am a pure energy। मेरी pure feelings for myself and for the people around them is the vibrations I'm giving them। And when there is a purpose of giving, I'll be happy। जब मुझे ये लगता है कि मेरा सुनना चाहिए, मेरा क्यों नहीं सुनते, मैं जैसे बोलूं वैसे क्यों नहीं करते, when there is begging, then there is emptiness। when there was this purpose कि मुझे तो देना है, मुझे चलो कोई बात नहीं, मेरे लायक संबंध नहीं है, मेरे लायक वो जगह नहीं है, लेकिन क्यों देना है? क्योंकि मैं भरपूर हूं। आई एम so when I change the thoughts and do the action, the converter has to be here, the converter not has to be here। हम इधर कन्वर्ट करें, और नहीं तो जब इधर कन्वर्ट नहीं करते, खाली इधर करते रहते हैं, हम कहते हैं मैंने बहुत किया, अब मेरे से नहीं प्रोसेस। दिस इज द रिलेशनशिप। तो इसलिए सोल टू सोल कनेक्शन मतलब थॉट के लेवल पे, व्हाट आई एम थिंकिंग फॉर दैट पर्सन इज द कनेक्शन आई शेयर विथ हिम, नॉट व्हाट आई एम सेइंग। अब जैसे एम्प्लॉयर, द टीम लीडर आए, यस 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 बॉस, यस सर, यस श्योर, जाते ही फिर कहते क्या है, कुछ समझता नहीं है, जबरदस्ती, मैं नहीं कुछ करने वाला। दिस इज द क्वालिटी ऑफ संबंध। तो हमारा संबंध क्या था? यस यस, जी सर, हाँ जी सर, यस बॉस। लेबल के साथ संबंध, सोल का सोल के साथ कनेक्शन नहीं। आई एम एक्सेप्टिंग इट, यस, बिकॉज ही इज सीनियर टू मी, मैं एक्सेप्ट करूं। हैव दैट फुल हैप्पीनेस व्हाइल एक्सेप्टिंग। तो ये संबंध सोल टू सोल कनेक्शन। और यही, इसीलिए हाउ टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप, दिस इज द होल आइडिया। हैविंग अ सोल टू, जस्ट हैविंग अ प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स whilst dealing with everybody is called soul to soul।
अब हम समझा भी देते किसी को, क्या है, कुछ समझता नहीं है, अब मुझे समझाना तो पड़ रहा है, अंदर चल रहा है ये तो कुछ समझता नहीं है, ये तो भोंदू है, पता नहीं कब इनकी बुद्धि में आएगा, अब ये अंदर चल रहा है, और ऊपर से समझा रहे, तो मैं क्या दे रही हूँ, वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव दे रही हूँ, एंड नॉट एक्चुअली हेल्पिंग। इवन इट कुड बी इन द केस ऑफ अ चाइल्ड, अंदर टेंशन खुद को है, अंदर ये है कि क्या है इतना, मेरे भाई का लड़का देखो कितना होशियार है, मेरा बच्चा देखो बिल्कुल होशियार नहीं है, ऐसा है। और ऊपर से हम कहते हैं पढ़ो पढ़ो, देखो मैं पढ़ाती हूँ, सो आई एम डूइंग दैट एफर्ट, बट इनसाइड द वाइब्रेशंस आर वेरी कर्सिंग फॉर द चाइल्ड। ये तो पता नहीं पास होगा या नहीं होगा, पता नहीं ये नंबर लाएगा नहीं लाएगा, एंड मैं एफर्ट कर रही हूँ। तो सोल टू सोल कनेक्शन, गिविंग द सोल, अपने अंदर की प्योर फीलिंग्स देना, इन दैट एक्शन, इन एवरी एक्शन इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप। हम ऊपर ऊपर से बहुत कुछ कर देते, इसलिए फिर हमको मिलता भी ऊपर ऊपर से है, और जब वो मिलता है हम कहते हैं ये बहुत आर्टिफिशियल है। नाउ आज हम, कल श्राद्ध होगा, मना भी रहे, श्राद्ध के दिन चल रहे, अब देखो हम क्या करते हैं ना, खाना देने का टाइम आता है, घर में बुजुर्ग है, बड़े हैं, देती वो, बोल रहे हैं देती हूँ ना, एक बार बोला हाँ देती हूँ, अच्छा 2 मिनट हो गया, उनको तो पेशेंस नहीं है, बेचारे नहीं ले सकते, क्या है दे दी, आपको आप रुक नहीं सकते हो, दे रही हूँ ना, तो खाना भी दे रही हूँ और साथ साथ में इरिटेशन भी दे रही हूँ। अच्छा, वो जल्दी उठ जाते हैं, टाइम पूछते हैं, आप कहते हो, आप रोज जल्दी उठ के मेरा नींद खराब करते हो। तो अ, उसमें मेरा इरिटेशन, उसमें मैं तंग आती, फोन बार बार करते, मम्मी मुझे बार बार मत फोन किया करो, तो उसमें इरिटेशन। तो ये सब करते समय, डीलिंग विद द पीपल, द सीनियर्स अराउंड मी, उस समय में बहुत इरिटेशन। और फिर श्राद्ध के दिन हम उनको भोग खिलाते, भाई तुम खाओ, और फिर कभी कभी वो नहीं होते हैं हमारी जिंदगी में, हम कहते हैं बस थोड़ा सा एक बार आप आ जाते, इतना सा मुझे बोल देते। जब वो बहुत बोल रहे थे हम कहते चुप बैठो, मेरे को टाइम नहीं है अभी मत बोलो, और फिर हम कहते कि थोड़ा सा बोल देते। क्या हम उनको जीते जी सुख दे सकते हैं? तो आज से, कल बहुत बड़ा श्राद्ध का भी दिन है, हम जिनके साथ भी हमारे संबंध है, हमारे घर में बड़े हैं, लेट्स एक्चुअली वैल्यू देम, रिस्पेक्ट देयर एवरी एटीट्यूड। बोलना है उनको, स्टॉप भी करना है कि भाई ज्यादा फोन नहीं करो, बट वो प्यार से, वो रिस्पेक्ट से, अंडरस्टैंडिंग द सोल इज वेरी कंसर्न, देयरफॉर इज आस्किंग। सोल की भावनाओं को रीड करना, समझना, इज कॉल्ड अ सोल रिलेशनशिप। उनको मेरे लिए बहुत कंसर्न है, तभी तो बोल रहे हैं, ये भावना समझना। तो इसलिए मनाओ, श्राद्ध मनाओ, खिलाओ, लेकिन वो खिलाना, वो प्योर एनर्जी उनको देना, ऑलवेज, particularly when they are with me, it is my luck, it is my fortune, बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद, क्योंकि जो मैं कभी भी करूंगी वो उनका, उनको अच्छा लगेगा, दैट इज द ब्लेसिंग फॉर मी। और जीवन में मेरे लिए ये ब्लेसिंग्स ही मेरे सीक्रेट है फ्यूचर सक्सेस की। इसलिए फिर कहते पितृ दोष, कहते पितृ दोष, ऊपर से उनकी बैड एनर्जी आ रही, बड़े कभी भी प्योर बैड एनर्जी, पेरेंट्स कभी बच्चों के लिए नेगेटिव नहीं सोच सकते, लेकिन जब वो थे ना, तब मैं ऐसे तंग आती थी, यही बैड एनर्जी जो मैंने कमाई थी, वो आज मेरा पितृ दोष के रूप में हम कहते हैं कि ये होता है। सो देयरफॉर हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कंसर्न। वो कहते तुम आई नहीं, बहुत दिन हो गए, मैं कल ही आके आई, जरूर जाए हम उनके पास, ठीक है आपका दिल है, मैं आ गई आपके पास, आपके साथ रहना, उनके प्रेजेंस, उनको सुख दे, खुश देना, सुखी फील कराना, ये मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद लेना। तो
ऐसा रिलेशनशिप भी हम ये करके ये बहुत अपना श्रद्धांजलि दे. So this is called real Shraddha. Can we do that? Should we do that? Can we be comfortable doing it? You will feel so happy because you just don't know inside उनकी कितनी दुआएं, उनके वो जो भी सोचते हैं वो उनकी दुआएं हैं, और वही दुआएं मुझे आगे बढ़ाएगी. चाहे मुझे 2 मिनट लेट होता हो, वो कह रहे रुको, हम रुके, हम उनके पास जाए, उनको पूछे. ये 2 मिनट लेट नहीं हो रहा है पर आपकी गाड़ी वहां रुक जाएगी. ऑटोमेटिक आपका जो भी बाद में का काम होना है वो अच्छा हो जाएगा. लेकिन उनकी केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट ही उनकी रियल श्राद्ध बना. तो अभी से, आज से हमारे साथ, हमारे पास अगर है, हमारा बहुत फॉर्च्यून है कि हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हम उनकी इस तरह की डीपली केयर और कंसर्न करें. दिस इज कॉल्ड श्रद्धांजलि. तो आज एक 2 मिनट साइलेंस करके मन में भी संकल्प करें, मेरा सोल, मैं आत्मा शक्तिशाली हो, मुझे कंप्लीटली परमात्मा से मिल रहा है, उससे मुझे लेना है. अगर शांति लेनी है, रिस्पेक्ट लेना है, तो केवल परमात्मा से. और दुनिया में जो भी है मेरे पास, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो कलीग है, उन सबको मुझे देना ही देना. I don't want anything in this relationship. I just want to give, and only give. This is the real Shraddh, Shraddhanjali, and a promise from now on. I will share with my elders in my family, in my surroundings. Om Shanti. Shanti. So, thank you very much, and we'll meet for the next level of soul to soul connection in the next session. Thank you, Didi, for the session. Thank you everyone for joining. We will meet again next week with the same series. Om Shanti.